Good morning, students. I am Jyoti Mudgal, and today we are going to uh, learn Unit 1 Geometry. So, let us start. So, Geometry में हम basically क्या पढ़ेंगे? Techniques for sketching parabola, ellipses, and hyperbola. Then reflection properties of parabola, ellipse, and hyperbola, and then rotation axis and second degree equation. So let's start with parabola. So as we know कि जैसा कि हमने अपना स्कूल टाइम में पैराबोला के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो उसको थोड़ा सा रिकॉल करेंगे और फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और हाउ टू स्केच द पैराबोला एंड रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, रोटेशन ऑफ एक्सिस एंड सो ऑन. So let us start with parabola. So a parabola is the set of all points in the plane that are equidistant from a fixed line and a fixed point not on the line. Here the line is called directrix of the parabola and the point is called the focus. So as we can see in this figure, this line is a directrix and this point is focus. So अगर हम यहाँ से देखें तो focus और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल डिस्टेंस होगा. मेनली कि अगर मैं कोई भी पॉइंट से P कंसिडर करूँ इस पैराबोला के ऊपर से, यहाँ पर ये पॉइंट मैंने कंसिडर किया P. सो अगर इसमें अगर मैं कोई भी पॉइंट लेती हूँ, से लेटस अगर मैंने इस पॉइंट को से P नाम दिया, सो इसका जो डिस्टेंस होगा इधर डायरेक्ट्रिक्स से और फोकस से वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस रहेगा. एंड इसके अलावा एंड दिस एक्सिस इज नोन एज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जहाँ पे जो हमारा पैराबोला है वो सिमेट्री होगा. जैसे अगर अपर पार्ट देखें और जैसे ही लोअर पार्ट देखेंगे तो वो सिमेट्री होगी दोनों साइड. सो इस लाइन को हम बेसिकली बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सिंपली एक्सिस. एंड द पॉइंट वेयर द एक्सिस ऑफ सिमेट्री and the parabola intersect, that point is known as vertex of the parabola. Now comes to the parabolas in standard position. So there are 4 standard positions of parabola. So the first one is y square equal to 4px. As we can see in this figure, here whenever the equation is of the form y square equal to 4px, that means the parabola will be of this form, where axis of symmetry in this case is x-axis and directrix will be parallel to y-axis. Similarly, if the equation of parabola is of the form y square equal to minus 4px, that means the axis of symmetry will be x-axis and the directrix will be parallel to y-axis. But what is the difference between these two equations is the sign which have been written in front of the like 4px. Here it is minus 4px and here it is 4px. So whenever this is of minus 4px, that means our parabola will opens to the left of the y-axis, and if y square equal to 4px, that is the sign will be of positive, then the parabola will opens to the right of the y-axis. Similarly, the third standard form of the parabola is x square equal to 4py. That means here if we see the difference, here it is x square equal to 4py. So 4py, as we see y here, that means the axis of symmetry will be y in this case. Similarly, x square equal to minus 4py means y will be the
axis of symmetry. Now, as we see in the first case here, the parabola opens to the opens upwards, and in the second case the parabola opens downwards. Here in the first case the directrix is parallel to y-axis and the axis of symmetry is y-axis, whereas in the second case x square equal to minus 4 py, the axis of symmetry is y-axis and the directrix is parallel to y-axis, x-axis. So the difference is basically as we have seen in the first case. तो जैसे उसमें था कि अगर प्लस साइन होता था तो हमारा जो पैराबोला है इसमें वो अपवर्ड्स ओपन होगा, और अगर नेगेटिव साइन आ जा रहा है यहाँ पे जैसे -4py, तो जो हमारा पैराबोला है वो डाउनवर्ड्स ओपन होगा. सो यही डिफरेंस है यहाँ पर. सो ये एक्चुअली हम अपने स्कूल टाइम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. दीज आर द बेसिक्स विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर earlier classes. Now comes to the next. This is technique for sketching parabolas. So this is the new topic which we have to learn. So how to sketch a parabola from its standard position. There are basically 4 steps which we will follow. The first step is determine whether the axis of symmetry is along the x-axis or the y-axis. Suppose if we are given any equation, and first of all we have to see what will be the axis of symmetry. It is along the x-axis or the y-axis. So the axis of symmetry is along x-axis if the equation has y square term, and it is along the y-axis if it has an x square term. So from here we can see whether the axis of symmetry is x-axis or the y-axis. Now come to the second point. Here determine which way the parabola opens. Let us suppose that the axis of symmetry is x-axis for a parabola. Then there will be 2 cases. Either the parabola opens to the right or to the left of the y-axis. So how to find or how to observe that which side the parabola opens. So here if the coefficient of x is positive, then we say that the parabola will open to the right, and if the sign of the if the coefficient of x is negative, then we say that the parabola will open to the left of the y-axis. So from here we can find easily where our parabola opens, either to the left or to the right. Now as we can compare this with the figure. So from here, if the axis of symmetry is x-axis, so there can be 2 cases. Either it opens to the right or to the left of the y-axis. If the coefficient of x-axis is positive, that means that our parabola will always opens to the right of the y-axis, and if the coefficient of x is negative, that means our parabola opens to the left of the y-axis. Now come to the third step, that is determine the value of p. So यहाँ से हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, और ये जो p है इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. सो इसमें हम बेसिकली करते हैं, अगर आप इस स्केच को देखें, रफ स्केच जो है, इसमें क्या होगा, ये जो डिस्टेंस होगा मेनली, सो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज p, एंड हियर दिस पॉइंट, दिस इज आवर फोकस. सो फोकस से वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस होता है वो p होता है.
सो अभी हमने जो भी दो स्टेप्स हमने देखा है, इसमें फर्स्ट स्टेप में तो हमने ये डिटरमाइन किया है कि वेदर द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. इन द सेकेंड स्टेप वी observe, yeah, we find out whether the our parabola opens to the right or to the left or upwards or downwards. And after determining all these, we will determine the value of P, that is the distance between the vertex and the focus. And this is P units. Now, after determining the value of P, which suppose we have an equation like y square equal to, say, 8x. So here we observe that this 8 is equal to 2p as we compare to the standard formula for the parabola. So यहाँ पे we will compare as 2p equal to 8 and hence we find p is equal to 4. So in this case we first draw a point or determine a point, say 4, 0 here in this xy plane, and then we will draw a line 2p, draw a line of distance 2p which is parallel to the y-axis and perpendicular to the x-axis through this point p, through this point, and फोकस से पास होता हुआ एक हमको डिस्टेंस 2p का बनाना है. जैसे हम ऊपर की साइड ड्रॉ करेंगे, सिमिलरली हमें नीचे की साइड भी एक ऐसे ही बनाना है. एंड देन हम एक ऐसा एक बॉक्स बना लेंगे जो कि एक रेक्टेंगुलर शेप का है. अब ये बॉक्स बनाने के बाद हम अपना पैराबोला बनाएंगे. पैराबोला कैसे बना सकते हैं? यहाँ से ये एक पॉइंट है बॉक्स का, एक कॉर्नर पॉइंट है. सिमिलरली ये वाला कॉर्नर पॉइंट एंड दिस ओरिजिन. सो हमें एक रफली एक ऐसा स्केच बनाना है जो ये जो 3 पॉइंट्स अभी हमने बनाए हैं कि इससे पास होता हुआ एक कर्व ड्रॉ करना है. तो ये जो कर्व हमें मिलेगा वो हमें किसका मिलेगा? अपने पैराबोला का कर्व मिल जाएगा. सो ऐसे हम लोग इसको स्केच कर सकते हैं. Let us take some example. So sketch the graph of a parabola x square equal to 12y and show the focus and directrix of each. So here two parts, we will focus only on one part. So let us suppose x square equal to 12y. So in the technique of sketching a parabola, we studied 4 steps, in which the first step is to determine which is the axis of symmetry, whether it is a y-axis or x-axis. As we have learned, if the our equation have x square term, that means the axis of symmetry will be y-axis. If the equation have y square term, that means the axis of symmetry is x-axis. So here it is x square term, that means axis of symmetry is y-axis. So since axis of symmetry is y-axis, so if we draw, so since axis of symmetry is y-axis, there will be two cases. Either our parabola will be of like this, or our parabola will open downwards. So how to determine which one case is this? So as we have learned that if the coefficient of y here in the equation is positive, then we said that our parabola will opens to the upward. And if the sign or if the coefficient of y is negative, then we said that the parabola will opens to the downwards.
So here the coefficient of y is positive. That means this case will be our parabola will be of this form. So that means we have did step 1 and step 2. Next step is to determine the value of p. So to find the value of p, as we have seen here, 4p equal to 12. As we if we consider our standard form, this is x square equal to 4p y. So here 4p is equal to this 12. So 4p equal to 12, and we find the value of p, we get p is equal to 3. Now we have to draw a box. How we can draw this box will be like, now since our parabola is of this form where our parabola will opens to the upwards, so determine a point. Say here it will be of focus 0, sorry, 0, 3. As we can see in this figure, so हम एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें यहाँ 0,3 होगा, जैसे कि आपको रेड डॉट से यहाँ पे दिख रहा होगा, डैश लाइंस हैं. सो यहाँ से हम एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें कि ये जो डिस्टेंस होगा, दिस इज 3 यूनिट्स, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस हियर इट विल बी हियर, ये 6 यूनिट का होगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ p. सिमिलरली ये जो यहाँ से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो भी 6 यूनिट्स होगा. सो ऐसे करके एक हम रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लेंगे, और फिर हमें एक ऐसा फिगर बनाना है जो कि ये जो 3 पॉइंट्स है जो रेड से मैंने किया है, दिस पॉइंट, दिस एंड दिस, इससे पास होता हुआ एक हमको पैराबोला शेप में कर्व बनाना है. सो यहाँ पर ये इसका कर्व हो जाएगा. और हमें पता है डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, y इक्वल टू माइनस पी. जितना डिस्टेंस यहाँ पे p का था उतना ही डाउनवर्ड्स हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और जो इक्वेशन होगी दिस इज y इक्वल टू -3. सो दिस विल बी द डायरेक्ट्रिक्स फॉर दिस पैराबोला. And similarly we can solve the second part. In the second part we have y square equal to -8x. Now step 1 was to determine which is the axis of symmetry, whether it is x-axis or y-axis. Since there is a term of y square, that means the axis of symmetry will be x-axis. Now x-axis है तो हमारा जो parabola है that will opens either to the left or to the right of the y-axis. Now since the coefficient of x here is negative, that means our parabola will opens to the left. So अगर हम यहाँ से देखें इस फिगर में, so ये लेफ्ट की साइड हमारा पैराबोला ओपन हो रहा है, और हमें यहाँ से कंपेयर करना होगा 4p इक्वल टू 8 एंड वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p. एंड p फाइंड आउट करने के बाद एक ऐसा बॉक्स हमको बनाना है, एक ऐसा रेक्टेंगल हमें बनाना है जिसका जो ब्रेड्थ होगी वो 2 यूनिट्स होनी चाहिए, एंड द length of the rectangle should be 4p. That means 8 in this case. And then we will draw our shape of parabola which passes through these 3 points, this point, this point,
एंड दिस, यहाँ से पास होता हुआ एक हमें पैराबोलिक शेप का एक कर्व ड्रॉ करना होगा. Now let us consider another example. Find an equation of the parabola that is symmetry about y-axis and has its vertex at the origin and passes through the point 5, 2. Now हमें already यहाँ पे बता दिया गया है कि axis of symmetry is y-axis. So हम यहाँ से देख सकते हैं, तो y एक्सिस अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो हमारा जो पैराबोला की इक्वेशन है वो दो टाइप की हो सकती है. either it will be of the form x square equal to 4py or x square equal to minus 4py. now which will be this parabola of the form? so उसके लिए हमें एक दूसरी हिंट दी है जो कि है has its vertex at the origin. obviously हम स्टैंडर्ड कर रहे हैं तो उसमें वर्टेक्स जो है ओरिजिन पे ही है, and passes through the point 5, 2. Now this parabola, so if I draw a rough sketch, now as we know the point 5, 2 will be in the first quadrant, and since we have two cases here where the axis of symmetry is y-axis, so either it will open to the upwards or downwards. So either it will be like this or this, but we have already given that the our parabola should passes through this point, that is a point which is on the first quadrant. that means that parabola should passes through this, so that will be of this form, because if the parabola will opens downwards then it will never passes through the point which lies in the first quadrant. that's why हमारा जो पैराबोला होगा वो इस फॉर्म का होगा जो फर्स्ट केस मैंने बताया, जिसमें कि हमारा जो पैराबोला है वो अपवर्ड्स ओपन होगा. So the equation will be of this form: x square equal to 4py. x square equal to 4py. Now the parabola passes through the point 5, 2. That means that this x square equal to 4py must satisfy this point, and when we put the values of x and y in the equation we get p equal to 25/8. so यहाँ से हम लोग इसकी values put करके हम अपनी equation find out कर सकते हैं. so this is our equation, desired equation. Now comes to the translated conics for parabola. So here translation means कि अगर हमारा जो parabola है उसको just हम translate कर दें. Translate means जो हमारा origin है उसको shift कर दें और किसी दूसरे point पे ले आएं. सिर्फ हम origin को shift करेंगे, उसकी shape को एज इट इज रखना है. ऐसा नहीं है कि हम थोड़ा टिल्ट कर दें किसी साइड या उसको रोटेट कर दें, ऐसा कुछ नहीं करना है. बस हमें अपने पैराबोला का जो ओरिजिन है उसको शिफ्ट करके किसी और पॉइंट पे रखना है. सपोज अगर मैं यहाँ पर जैसे अगर ये शेप हम देखें, ये फिगर, सो इसमें एक पैराबोला है जिसका पहले जो पॉइंट था, अगर हम देखें पहले जो स्टैंडर्ड था उसमें हमने ओरिजिन को हमने इसका वर्टेक्स माना है, पर यहाँ पे वर्टेक्स जो है वो शिफ्ट हो गया है -2, 3 पे. सो दिस इज ऑफ द फॉर्म ट्रांसलेशन फॉर्म. हियर जस्ट वी translate our origin to some other point. We let the point be h, k, where we translate our vertex from origin to that point. Then there will be be 4 cases again. The parabolas with vertex
vertex h comma k and axis parallel to axis parallel to x axis. So अगर हम लोग देखें यहाँ पर नाउ एक्सिस जो है वो पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल है. दैट मीन्स जो हमारा नया एक्सिस हम बनाएंगे वो कुछ यहाँ पर होगा जो कि पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के. और सपोज मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया h, k और यहाँ पे उस पैराबोला को अब ड्रॉ करना है. सो अगेन ये इसकी स्टैंडर्ड एक फॉर्म होती है, वो है y माइनस के स्क्वायर. y minus k square is equal to 4p x minus h if and in this case the parabola opens to the right. In the second case is y minus k whole square equal to minus 4p x minus h. Here the coefficient of x minus h is negative, hence it will opens to the left. Now the other case is when the parabola with vertex h comma k and axis parallel to y-axis, that is axis of symmetry is parallel to y-axis, then in that case as we know that the parabola will either opens upwards or downwards. So in that case also we have two cases, upwards and downwards. So here x minus h whole square equal to 4p, y minus k is its equation, form of equation, and the second one is x minus h whole square equal to minus 4p y minus k. Now as we have seen that we can see as the coefficient of y minus k is negative in this case, therefore the parabola will opens downwards. Now let us consider example. Find an equation of the parabola that has its axis at 1, 2 and its focus at 4, 2. So वर्टेक्स अभी यहाँ पर हमारा शिफ्ट हो गया है, ओरिजिन से शिफ्ट होके 1, 2 पे चला गया है ये, एंड इट्स फोकस इज 4, 2. नाउ क्योंकि यहाँ पे भी अगेन ट्रांसलेशन हुआ है तो हमें एक ऐसा पैराबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. ऑब्वियसली ये जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, ये जो अभी 4 केसेस पढ़े हैं इनमें से ही कोई एक होगा. नाउ बट व्हिच वन? ना तो अगर हम इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो ना तो हमें ये बताया गया है कि एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है, तो उससे भी हमें कुछ हिंट नहीं मिल सकता. बट इफ वी सी this is the standard form of parabolas. If I consider this is y square equal to 4px form. So in this case the vertex is here and focus is somewhere here. So हम यहाँ देख सकते हैं कि जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उसी के ऊपर जो है वर्टेक्स एंड फोकस लाई करता है. So अगर हम यहाँ पर देखें 1, 2 एंड 4, 2, तो ये दोनों जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई करेंगे. अगर हम ऐसे कोऑर्डिनेट प्लेन पे अगर इन दो पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई करेगा. एंड ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट. सो यहाँ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो हम जो कि हमने फॉर्म पढ़ा था यहाँ पे, इफ द पैराबोला इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन दैट दिस विल बी ऑफ दीज टू फॉर्म्स ओनली. सो इनमें से कोई एक केस हम कंसिडर करेंगे. नाउ अगर हम ध्यान से देखें वर्टेक्स इज 1, 2 एंड focus is 4, 2. That means focus lies right to the vertex. That means what? Our parabola will opens to the right always. So यहाँ से अगर parabola right में open होगा, that means अगर equation देखें
सो राइट के लिए ये वाली इक्वेशन थी, सो ये वाला इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी इक्वेशन की। सो ये जो फॉर्म होगा ये इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा। एंड सिंस द वर्टेक्स एंड फोकस आर 3 यूनिट्स अपार्ट, क्योंकि फोकस और जैसे यहाँ पे 1,2 है और यहाँ पर 4,2 है, तो जो डिस्टेंस होगा, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई कर रहा है और जो डिस्टेंस है दोनों लाइन के बीच, दोनों पॉइंट के बीच, वो 3 यूनिट्स का है। 4 - 1 दैट इज 3 यूनिट्स। सो 3 यूनिट्स अपार्ट है, दैट मीन्स द our value of p is 3 units, and since the vertex is at 1,2, that means here this value is h comma k. So this is h comma k. So यहाँ से h और k की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। h is 1 and k is 2. सो यहाँ पर h और k की वैल्यू पुट करेंगे हम, एंड p की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड आउट की है 3 यूनिट्स, सो इसमें इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो वी गेट द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y - 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 12 into x - 1. This is the equation of this parabola that has its vertex at 1,2 and its focus at 4,2. Now describe the graph of this equation. Suppose आपको एक इक्वेशन दे दी है इस फॉर्म की और हम लोगों को इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ऑब्वियसली अब हमें नहीं पता यहाँ से कि इसका ग्राफ कैसा होगा। ज़रूरी नहीं है कि पैराबोला हो, इट माइट बी पॉसिबल दैट इट्स ग्राफ विल बी ऑफ इलिप्स और हाइपरबोला और सर्कल, इट माइट बी एनीथिंग। सो हमें पता कैसे चलेगा कि ये किस शेप का होगा। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब भी आपका जो इक्वेशन गिवन है उसमें एक टर्म यूज हो रही है वाई स्क्वायर वाली, एंड बाकी जो टर्म है वहाँ पे सपोज यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं x एंड y, जिसमें से वाई स्क्वायर वाली टर्म यूज हो रही है, बट द सेकेंड वेरिएबल दैट इज x, वहाँ पर एक ऐसा वेरिएबल यूज हो रहा है, मतलब उसका जो डिग्री होगी वो 1 होगी। दैट मीन्स सिंपल x होगा, x स्क्वायर वाली टर्म नहीं होगी। तो उस केस में हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये कुछ पैराबोला की फॉर्म का ही होगा। सो लेट अस कंसिडर, अगर हम यहाँ पर देखें हम क्या करेंगे इस केस में, जो भी हमारा y वाले टर्म्स हैं उनको लेफ्ट में ले लेंगे, एंड जितनी भी जितने भी x एक्सेस वाली x टर्म्स वाली जो भी टर्म्स हैं और जो भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उसको हम राइट में शिफ्ट कर देंगे। सो हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ इस टाइप की हो जाएगी, y² - 6y इक्वल टू 8x + 23। नाउ उसके बाद हमें क्या करना है, हम लोग एज लेफ्ट वाली टर्म हम देख सकते हैं, हम इसमें कंप्लीट द स्क्वायर, जो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला जो मेथड होता था वही हम करेंगे। यहाँ पे हमें एक ऐसा फाइंड आउट करना है वैल्यू, सो दैट कि वो कुछ y - a का होल स्क्वायर टाइप बन जाए। सो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर मैं लेफ्ट में सपोज इस इक्वेशन में लेफ्ट में +9 कर दूं, एंड सिमिलरली राइट में भी +9 कर दूं, तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दोनों साइड हमने जो है सेम टर्म को ऐड किया है। सो अगर हम देखें तो यहाँ हो जाएगा y² - 6y + 9, सो दैट कैन बी रिटन एज y - 3 होल स्क्वायर, and here right side will be 8x + 23 + 9, that will be some 8x + 32. So finally हम यहाँ से इसको कोफिशिएंट्स भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं 8 × x + 4
लिख सकते हैं अगर 8 कॉमन ले लूँ मैं। सो हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मुझे अपनी इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाना था। जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स थी, ये जो 4 फॉर्म्स हम लोगों ने पढ़ी थी, उनमें से किसी एक फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना था। सो अगर देखिए तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इस फॉर्म में हमारा जो इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो चुकी है। सो दिस इज लाइक y minus k whole square equal to 4p x minus k. सो यहाँ x minus h, सॉरी। सो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि h की वैल्यू कितनी होगी, -4 एंड k की वैल्यू होगी 3। और जब हम लोग इस 8 को इक्वेट करेंगे विद 4p, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ p, दैट इज 2 यूनिट्स। सो p की वैल्यू आ गई हमारे पास, h की वैल्यू आ गई और k की वैल्यू आ गई। एंड अगर हम यहाँ इस इक्वेशन से देखें तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो हमारा पैराबोला होगा, that has an axis of symmetry as x-axis, because here it is y square, sorry y square वाली terms use हो रही हैं। So x-axis जो है axis of symmetry हो जाएगा यहाँ पर। तो again दो cases बनेंगे, either our parabola will opens to the right or opens to the left. So since the coefficient of x minus h here is positive, that means our parabola will opens to the right. So हमारा parabola right में open होगा और उसके हिसाब से हम यहाँ पर एक और parabola हम अपना sketch कर सकते हैं। पर यहाँ से देखें हम लोग जो वर्टेक्स है हमारी वो -2,3 है। Sorry, this is h equal to -4 and k equal to 3. So this vertex is -4,3, and since the value of p is 2, that means 2 units here, and here will be our focus. So यहाँ पर focus होगा 2 यूनिट्स अपार्ट, तो ये -2,3 हो जाएगा। और फिर हम अगेन जैसे हमने टेक्निक किया था, स्केचिंग टेक्निक जो होती है पैराबोला की, उसकी हेल्प से हम एक और यहाँ पर पैराबोला ड्रॉ कर सकते हैं बाय फर्स्ट मेकिंग अ बॉक्स ऑफ रेक्टेंगुलर शेप, और फिर हम उससे पैराबोला स्केच कर सकते हैं। Comes to the ellipse. What is ellipse? So as we know, an ellipse is the set of all points in the plane, the sum of whose distance from two fixed points is a given constant, positive constant, that is greater than the distance between these fixed points. So यहाँ पर जो ये fixed points होते हैं, इन fixed points को हम focus बोलते हैं, और क्योंकि यहाँ पर दो focus हैं, that means in plural form we can say it foci, and the midpoint of these distance between these focus will be called center of the ellipse. इधर ellipse में दो axes होती हैं, एक होता है major axis and the second one is minor axis. So major axis वो axis होती है जो कि जिसका distance थोड़ा बड़ा होता है। तो अभी अगर हम इस फिगर में देखें, इधर यहाँ पर हमारे पास दो फोकस हैं, focus 1 and focus 2, and the midpoint of these two focus line is called center. और जितना भी distance है, अगर हम यहाँ से देखें, the sum of the distance to the foci is constant. तो जितना भी, अगर मैं यहाँ पे suppose कोई point यहाँ पर लो P1, इधर suppose P2 लिया मैंने, सो ये जो डिस्टेंस P1 से दोनों फोकस का डिस्टेंस है, और उनको अगर सम करें, और सिमिलरली P2 से भी अगर इन फोकस का डिस्टेंस लेके सम करें, तो वो हमेशा सेम रहेगा। नाउ
This is called the vertex in the ellipse. These 2 points, that is end points जो होंगे major axis के, ये हमारे दो फिक्स वर्टेक्स होते हैं यहाँ पर. एक होता है मेजर एक्सेस, जिसमें कि अगर हम देखें दिस इज मेजर मीन्स जो थोड़ी लंबी लाइन होगी सर, दिस इज मेजर एक्सेस. एंड अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइन देखूँ, ये कंपेरेटिवली स्मॉलर है टू द हॉरिजॉन्टल लाइन. सो जो स्मॉलर वन है उसको हम माइनर एक्सेस बोलते हैं. हम ये जो वैल्यू, ओके, let us see this figure 10.4.11. so यहाँ पर हमें पता है कि ये होता था focus. so these are two focus, say f1 and f2. तो and this is origin. so origin से लेकर, और we can say center से लेकर focus तक का जो distance है उसको हम denote करते हैं a letter C से. सिमिलरली लेफ्ट में भी ऐसे ही होगा, सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस है उसको हम सी से डिनोट कर रहे हैं. सिमिलरली यहाँ पर होता है हमारा हियर इट इज से, अगर मैं ये पॉइंट देखूं तो ये वर्टेक्स होते हैं, दो वर्टेक्स थे हमारे पास. सो ये जो वर्टेक्स और सेंटर से बीच का जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स एंड द सेंटर इज डिनोटेड बाय द लेटर ए. सिमिलरली लेफ्ट साइड में भी ए से डिनोट हो रहा है. एंड यहाँ पर जो ये जो पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है सेंटर से लेकर ऊपर, ये हमारा बी लेटर से हम इसको डिनोट करते हैं. So this is the denotation of what is these variables a, b and c are. So and the relationship between these a, b, c is a equal to under root b square plus c square, or we can say c equal to under root a square minus b square. Most of the cases में क्या होता है कि आपको ए बी सी में से कोई दो वैल्यूज पता होती हैं, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द थर्ड वन टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ellipse. So ellipse in its standard position, स्टैंडर्ड पोजीशन में क्या होता है ellipse का, जो हमारा सेंटर होता है ellipse में वो ओरिजिन होता है. एंड यहाँ पर दो केसेस हो सकते हैं, या तो हमारा जो मेजर एक्सिस है इट कैन बी आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. सपोज इन द फर्स्ट केस, जैसे कि हम देख सकते हैं जो हमारा मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है. सो इस केस में हमारी इक्वेशन होती है एलिप्स की एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, where a is greater than equal to b. And the second one is where the major axis is y-axis. Here y-axis is our major axis and here x-axis is our major axis. So जब y-axis major axis होगी तो हमारा इक्वेशन इस फॉर्म का होगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1. दैट मीन्स अगर हम यहाँ से देखें तो जो भी यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर जो है, सॉरी ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी. सो क्योंकि ए जो है ऑलवेज ग्रेटर देन बी है, यहाँ से देखेंगे अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में तो एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है और उसके जो डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर है विच इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर. सो जब भी ऐसा हो आपके साथ कि एक्स स्क्वायर के नीचे डिनोमिनेटर में बिगर टर्म है या वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर में बिगर टर्म है, उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा मेजर एक्सिस क्या होगा. सो अभी वही चीज हम यहाँ पर देखेंगे. टेक्निक फॉर स्केचिंग ellipse in its standard form.
its standard equation basically. So step 1 is determine whether the major axis is on the x-axis or on the y-axis. So ये कैसे पता चलेगा हमें? So यहाँ से हम देखें the major axis is along x-axis if x square has the larger denominator, and it is along the y-axis if y square has larger denominator. So जिसका भी larger denominator होगा, जिस भी टर्म के नीचे, वही जो है हमारी major axis उस केस में हो जाएगी. The second step is determine the values of a and b. जब हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद हमें एक बॉक्स बनाना है जैसे कि हमने पैराबोला में किया था, और फिर उसकी हेल्प से हम एक एलिप्स स्केच करेंगे. यहाँ से हमें पता है कि a और b की वैल्यूज हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसा कि अगर हम यहाँ पर देखें, सो अगर x एक्सिस के, अगर हमारी मेजर एक्सिस है तो x स्क्वायर के नीचे वाली जो टर्म होगी वो a स्क्वायर होगी. सो a स्क्वायर को हम इक्वेट कर देंगे जो भी हमारी इक्वेशन गिवन होगी उससे, वहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर एक बॉक्स बनाएंगे. वो बॉक्स किस टाइप का होगा? सपोज x एक्सिस को मैं मेजर एक्सिस कंसिडर कर रही हूँ, तो हम a यूनिट्स, सपोज इधर यहाँ a यूनिट्स हम a यूनिट्स राइट में बनाएंगे और a यूनिट लेफ्ट में, और यहाँ पे y एक्सिस के अलोंग b यूनिट्स तक ऊपर नीचे हमें यही बनाना है, और फिर यहाँ से एक ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है जो इन 4 पॉइंट से पास होगा बेसिकली. तो वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा. सो यहाँ से इसकी हेल्प से हम लोग फिर एक एलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं. और वो एलिप्स कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं? एक ऐसा कर्व बनाना है जो कि ये जो 4 पॉइंट्स थे इससे पास होके जाए. ये पैराबोला एलिप्स लग नहीं रहा, पर वी कैन अज्यूम कि दैट दिस इज एन एलिप्स. Here it is the figure कि हम यहाँ से ये जो पॉइंट्स होंगे, this one, this and this, यहाँ से एक पास होता हुआ एक एलिप्स की शेप का एक रफ स्केच ड्रॉ कर सकते हैं. एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे? स्केच द ग्राफ्स ऑफ द एलिप्स एंड these are two ellipse की इक्वेशन आपको गिवन है, एंड शोइंग द फोकाई ऑफ ईच. दोनों के फोकस भी आपको बताना है, मतलब स्केच करके और दिखाना भी है. तो सबसे पहले हम ए पार्ट को कंसिडर करेंगे. तो पहला केस जो स्टेप होता है वो देखते हैं हम कि डिनोमिनेटर किसका लार्जर है. सो अगर मैं इसमें देखूं, डिनोमिनेटर जो है 16 जो है लार्जर है. दैट मीन्स जो हमारी मेजर एक्सिस है वो कैसी होगी? वाई एक्सिस हमारी मेजर एक्सिस होगी. सो हमारा जो पैराबोला एलिप्स है वो कुछ इस शेप का बन जाएगा. सो यहाँ से हमने मेजर एक्सिस फाइंड आउट कर ली कि मेजर एक्सिस विल बी वाई एक्सिस. अब as we know a square is greater than b, so a square will be 16 and b square will be 9. यहाँ से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं. 4, a की वैल्यू 4 and b की वैल्यू 3. Now since this a is basically the distance, so it should be positive. That's why हमने यहाँ पे a को प्लस कंसिडर किया, मतलब पॉजिटिव 4 कंसिडर किया. Now इसकी हेल्प से हम एक बॉक्स बनाएंगे
जो कुछ इस शेप का होगा, ये जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे a जो डिस्टेंस हमने लिया है, दिस इज a, इसको बोलते थे दिस इज 4 यूनिट एज वी फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सिमिलरली 4 यूनिट्स हमें नीचे ड्रॉ करनी है एंड राइट में 3 यूनिट्स जो कि b की वैल्यू है और लेफ्ट में भी 3 यूनिट्स। तो इसकी हेल्प से एक हमने स्क्वायर ड्रॉ कर लिया, सॉरी एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, और उस रेक्टेंगल की हेल्प से हम एक एलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं सच दैट कि वो एलिप्स जो है इस ये जो 4 पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, ये पॉइंट्स सो इन पॉइंट से पास होता हुआ एक रफ हम एलिप्स का डायग्राम बना सकते हैं। अब इसमें था शोइंग द फोकस या फोकाई ऑफ ईच। तो फोकस के लिए जो हमारे पॉइंट्स होते थे वो सी होता था एंड वी नो अब हमें ए और बी की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर लिया और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो सी और ए बी सी के बीच में जो रिलेशन था वो कुछ ये होता था, c इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी हेल्प से हम c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और जो फोकस होगा हमारा वो होता है मेजर एक्सिस पे। जहाँ भी आपका मेजर एक्सिस होगा उधर उसी के अलॉन्ग हमारा फोकस होता है। क्योंकि ये वाई एक्सिस पे होगा तो इसलिए ये पॉइंट्स 0, अंडर रूट 7 एंड 0, माइनस अंडर रूट 7 है। इफ आवर मेजर एक्सिस इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस तो हमारे जो फोकस है वो अंडर रूट 7, 0 हो जाएंगे, यानी ये जो पॉइंट्स हैं ये इंटरचेंज हो जाएंगे यहाँ पर। सिमिलरली जो एक और सेकेंड पार्ट था हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। द केस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 4। सो इस केस में हमें ये याद रखना है कि जो एलिप्स होती है, एलिप्स का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उसमें जो हमारा RHS होता है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पे जैसे RHS 4 है, हमारा जो इलिप्स में इक्वेशन होते हैं उसमें RHS शुड बी 1। तो इस RHS को अगर मुझे 1 बनाना है तो अगर मैं पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दूँ तो हमारे बन जाएगा, और उसकी हेल्प से जैसे अभी हमने ये किया है वैसे ही हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। Now find an equation for the ellipse with focus या foci and 0, with the 0, plus minus 2 and major axis with the end points 0, plus minus 4. As we know that the end points of major axis are of the length a units. So यहाँ से हम मेजर एक्सिस की हेल्प से a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और फोकस की हेल्प से हम c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। So here a is 4 and c is 2, already we have given that. Now since the major axis ये जो एंड पॉइंट्स हैं वो 0, प्लस माइनस 4 है, और अगर हम इसको देखें तो ये जो है दिस इज अलोंग वाई एक्सेस, ये वाई एक्सेस पे सॉरी या वाई एक्सेस पे लाई करेंगे, इसलिए जो इसकी इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म की होगी जहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा, यानी डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर होगा जो कि लार्जर के लिए हम डिनोट करते हैं। और यहाँ से हम अब हमें a की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, तो बाय यूजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन a b and c we know that this is the relation b square equal to a square minus c square। यहाँ से हम b square की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर ये जो इक्वेशन थी इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी ये आंसर हो जाएगा। दिस इज द डिजायर्ड इक्वेशन ऑफ द ellipse with foci 0, plus minus 2 and major axis with endpoints 0, plus minus 4.
जैसे हमने अभी ट्रांसलेटेड कोनिक्स पढ़ा है पैराबोला के लिए, वैसे ही इलिप्स के लिए होता है कि जो हमारा सेंटर है वो ओरिजिन से शिफ्ट होके कहीं और चला जाएगा, किसी और पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन हम एज इट इज जैसा हमारा पैराबोला इलिप्स था उसी को जस्ट कहीं और शिफ्ट करेंगे, उसमें कोई भी और चेंजेस नहीं करेंगे उसमें हम। सो वो इस फॉर्म का होता है। अगर आपका जो ellipse है with center h, k and major axis parallel to x axis, तो उसकी इक्वेशन कुछ इस फॉर्म की होती है, x minus h whole square upon a square plus y minus k whole square upon b square equal to 1, where a is greater than b. Similarly, if the ellipse has the center at h, k and a major axis is parallel to y axis, so अगर y axis के parallel है, that means the denominator which is a greater, तो वो y axis के वाली जो y वाली terms है उसके denominator में आएगा, and x minus h whole square upon b square plus y minus k whole square upon a square equal to 1. Now let us consider some example. Find an equation for the parabola that has its vertex at 1, 2 and its focus at 4, 2. So आपको vertex दे दिया है, that is h और k की values आपको बता दी हैं, और focus दे दिया है। focus की मतलब value आपको पता है, किसी कोई एक focus आपको ओके ये पैराबोला का केस आ गया, तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे वी आर डूइंग इलिप्स, तो ये इसको पैराबोला की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। डिस्क्राइब द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इस ग्राफ का इक्वेशन कुछ भी हो सकता है। हाउ वी कम टू नो दैट its graph is whether a parabola, hyperbola, ellipse or any curve. So जब भी ऐसा कभी हो कि x square और y square वाली दोनों टर्म्स आ रही हैं आपके पास, क्वाड्रेटिक टर्म जो है x एंड या x square एंड y square दोनों आ रही हैं, और जो कोफिशिएंट है x और y का वो दोनों पॉजिटिव हो। सो यहाँ पर अगर देखें x 16 है और यहाँ +9 है, सो दोनों का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। और यहाँ कुछ x एंड y की टर्म्स भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ -64x -54y एंड +1, कभी ऐसा हो कोई टर्म, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे वेरिएबल्स वाली टर्म्स होती हैं, x वाली y जो भी है x एंड y टर्म्स, उसको लेफ्ट में रखते हैं और जो बाकी कांस्टेंट है उसको राइट में शिफ्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे एक ही कांस्टेंट था -1, उसको हमने राइट में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी x वाली टर्म्स हैं और y वाली टर्म्स हैं उनको ग्रुप कर लेते हैं, ग्रुपिंग करते हैं उसकी। जैसे यहाँ पे x वाली टर्म्स एक साथ लिख दी एंड यहाँ पे y वाली टर्म्स एक साथ लिख दी। उसके बाद हम इनका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इनका स्क्वायर्स कंप्लीट करते हैं यहाँ से। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर इसमें 64 ऐड कर सकते हैं इस वाली टर्म में, क्योंकि हमने लेफ्ट में 64 ऐड किया तो हम 64 ही राइट में ऐड करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग 81 ऐड कर सकते हैं राइट में, एंड सिमिलरली 81 लेफ्ट में भी कर सकते हैं। सो इसको यहाँ पर करके सॉल्व करेंगे। 16 यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ से 9 कॉमन ले लिया, तो ये कुछ फॉर्म हो जाएगी 16 x -2 होल स्क्वायर प्लस 9 y -3 होल स्क्वायर इक्वल टू 144। और जब हम और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अब देखो यहाँ पर जो हमारा एलिप्स होता है उसको जो राइट साइड में जो कांस्टेंट होता है वो 1 होता है। तो अगर मुझे इस राइट साइड को
राइट हैंड साइड को 1 बनाना है, तो डेफिनेटली आई हैव टू डिवाइड दिस 144 with all the equation with the whole equation. सो राइट और लेफ्ट दोनों साइड हम इसको 144 से डिवाइड करेंगे, तो हम कुछ इस इक्वेशन पर सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। तो यहाँ से हम लोग अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर करें, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो h है उसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 2, y की वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी k की वैल्यू 3 आएगी। अब क्योंकि जो डिनोमिनेटर जो बड़े वाला होता है वो a स्क्वायर होता है, यहाँ पे बड़ा 16 है, तो a स्क्वायर विल बी 16 एंड स्मॉलर वन विल बी b स्क्वायर, दैट इज 9। तो यहाँ से a b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और फिर हम by using the relation we can find the value of c, और c की हेल्प से निकाल के और हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि हमें पता ही है कि कैसे करते हैं। एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे जिसमें फिर उसका फोकस दिखा देंगे। अब क्योंकि यहाँ पे h, k की वैल्यू जो है हमारी 2, 3 आई थी, तो यहाँ 2, 3 किया हमने। फिर जो भी हमारी a की वैल्यू थी, सो a इज 4 इन दिस केस, सो 4 लेंथ का राइट साइड में एक पॉइंट डिनोट कर देंगे, दिस इज 5, ये 5 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये अच्छा सो हमारी a जो आया था वो हमारा 4 आया था आई थिंक, यहाँ पे अगर हम देखें, सो यस a इज 4। सो क्योंकि ये y एक्सिस के अलॉन्ग है, तो a डिस्टेंस ये होना चाहिए, मैंने थोड़ा गलत कर लिया था, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। सो ये जो डिस्टेंस है ये 4 होगा इस केस में। सो ये 4 होगा। सो जब हम यहाँ पे 3 में 4 ऐड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, सो दिस विल बी 2, 7। सिमिलरली 3 में 4 ऐड करेंगे तो ये हमारा -1 हो जाएगा, सो ये डिस्टेंस अगेन 4 हो जाएगा, एंड अवर b is 3। डिस्टेंस जो है पूरा ये 3 होगा, so here 2 plus 3 is 5 and similarly 2 plus 3 will be -1। so यहाँ से एक हम स्क्वायर रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लेंगे और उसकी हेल्प से एक एलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। Now comes to the last is conic section, that is hyperbola. As we know, a hyperbola is the set of all points in the plane, the difference of whose distance from two fixed distinct points is a given positive constant, and that is lesser than the distance between the fixed point. हाइपरबोला और एलिप्स में यही डिफरेंस है। हमने एलिप्स में किया था, जो डिस्टेंस था फिक्स्ड पॉइंट से किसी भी पॉइंट पे लेते हैं तो उनका सम सेम रहता था, अगर दोनों को ऐड करते थे तो वो सेम रहता था। यहाँ पे डिफरेंस सेम रहेगा, वहाँ पे सम सेम था, यहाँ डिफरेंस सेम रहेगा। और यहाँ पर भी जो दो फिक्स्ड पॉइंट्स की बात है यहाँ पर हो रही है वो फोकस ही है, और जो सेंटर है वही फोकस का मिड पॉइंट इज सेंटर। अच्छा, वहाँ पर हमने मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की बात की थी, यहाँ पर हम बात करते हैं फोकल एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस की। सो अगर हम देखें तो हमारा पैराबोला में अगर यहाँ देखें इस फिगर में 10.4.4 a, सो इस फिगर में ये जो y एक्सिस दिखा रखी है हमने, दिस इज कॉन्जुगेट एक्सिस एंड द x एक्सिस इज focal axis. This is focal axis, this is conjugate axis.
यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं दीज आर फोकस पॉइंट और फोकस, एंड द मिड पॉइंट ऑफ दिस फोकस इज सेंटर, एंड the point of intersection of focal length, focal axis with the hyperbola is axis, sorry, vertex, and so here we can see that there are two focus, one center, and two vertex. एंड अगर हम इधर ही बी फिगर में देखें, सो ये जो दो डायगोनल जो हमारी लाइंस बन रखी हैं, डॉटेड लाइंस हैं, ये होती है असिम्प्टोट्स। सो हम असिम्प्टोट्स की हेल्प से ही हम लोग अपना हाइपरबोला को स्केच कर सकते हैं। वो आगे मैं बताऊंगी कि कैसे हम लोग इसको स्केच कर सकते हैं। एंड वी नो असिम्प्टोट्स होता क्या है कि एक ऐसी लाइन जिसमें हमारा जो कर्व है वो ऐसा लगे कि एट इन्फिनिटी इट अप्रोचेस टू 0। सो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, अगर मैं इस लाइन को और एक्सटेंड कर दूँ और अपना हाइपरबोला को भी ऐसे एक्सटेंड करूँ, तो इन्फिनिटी पर ऐसा लगेगा कि ये जो हमारा हाइपरबोला है वो just it approaches towards this line, but at infinity even ये कभी भी हमारे इस asymptote को कट नहीं करेगा। It approaches towards this line but never intersect or and never meet to this point, this line. So ये हमारा asymptote है। Similarly अगर मैं यहाँ से इसको extend करूँ और अपना हाइपरबोला को भी एक्सटेंड करें, तो ऐसा लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे, मतलब एक दूसरे को कट करने वाले हैं, पर ऐसा होता नहीं है। थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस उसमें रह जाती है। सिमिलरली अगर इधर से इसको एक्सटेंड करें, इस लाइन को और इस हाइपरबोला को, यहाँ पे भी यही केस होगा। एंड सिमिलरली फॉर दिस साइड ऑल्सो। सो now equation of hyperbola in standard position, रिलेशन जो होता है ABC का, यहाँ पे भी ABC ही होते हैं टर्म्स। जो फोकस वर्टेक्स से सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हम A से डिनोट करते हैं, वाइल फोकस से सेंटर के बीच का डिस्टेंस को हम C से डिनोट करेंगे। और अगर हम इस नेक्स्ट ये जो फिगर है इसमें देखें, अगर मैं एक रेक्टेंगुलर सपोज एक ऐसा बॉक्स बनाऊं यहाँ पर, जिसमें दिस डिस्टेंस इज A एंड ये जो डायगोनल है ये C है, तो एक ऐसा अगर मैं यहाँ पे बॉक्स बनाऊं तो ये जो डिस्टेंस निकल के आएगी ये B कहलाती है। सो ABC यहाँ पर ये होंगे, और जो इनके बीच का रिलेशन होता है ABC का, वो ये इक्वेशन होता है दैट B इक्वल टू √C² माइनस A² और C इक्वल टू √A² प्लस B². हाइपरबोला इन स्टैंडर्ड पोजीशन, एज वी नो ये इसकी स्टैंडर्ड पोजीशन है, x² minus A² minus y² upon B² equal to 1, and similarly for the second one. इसमें हम स्केच कैसे करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फोकल एक्सिस किस साइड होगी हमारी। सो फोकल एक्सिस हमारी होती है वो उस एक्सिस के अलोंग होती है जहाँ पे हमारा जो ये जो टर्म है वो पॉजिटिव हो, उसके कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पर देखें, सो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस हमारी के अलोंग फोकल एक्सिस होगी, और यहाँ पे y² जो है पॉजिटिव है, तो ये y एक्सिस के अलोंग हमारा फोकल एक्सिस होगी। यहाँ से हम a b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जैसा कि हमने इलिप्स में किया था, दैट्स इट, इक्वेशन से कंपेयर करके, और फिर एक असिम्प्टोट बनाते हैं डायगोनल, और उसकी हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। The question is how to draw an asymptote or how to find an asymptote. अगर इक्वेशन कुछ इस फॉर्म की होगी
तो हमारा असिम्प्टोट की इक्वेशन ये होगी y इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन a इंटू एक्स। एंड अगर हमारा a और x और y यहाँ से इंटरचेंज हो जाते हैं तो यहाँ पर a अपॉन b हो जाएगा, और फिर उसकी हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। The graph of the hyperbola like this. So जब हम इसको देखेंगे यहाँ पर अगर देखें एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, दैट मीन्स जो हमारी हाइपरबोला है वो एक्स एक्सिस उसकी फोकल एक्सिस होगी, और उसकी हेल्प से यहाँ से हम निकाल सकते हैं दिस इज ए, सो ए स्क्वायर सो ए स्क्वायर विल बी 4, सिमिलरली बी स्क्वायर इज 3, बी स्क्वायर इज 9 एंड बी इज 3। ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, वहाँ से हम रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे सी के लिए। एंड नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू स्केच द ग्राफ और हाइपरबोला। तो उसके लिए ये बॉक्स बनाना तो इजी है, जो स्क्वायर रेक्टेंगुलर बॉक्स बना है। ये जो डिस्टेंस लेना है हमें, ये हम a लेंगे, ये जो डिस्टेंस लेना है ये b लेंगे। a और b की वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक डायगोनल बनाएंगे इस बॉक्स के अलोंग, ठीक है। और ये जो बॉक्स के अलोंग डायगोनल होगा, दिस इज, अगर हम इसकी इक्वेशन निकालें तो वो y इक्वल टू 3/2x, दैट इज असिम्प्टोट ही होगा। और फिर हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा हाइपरबोला बनाना है जो कि अगर मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करें हम लोग, सो अब हम यहाँ से कैसे अपना हाइपरबोला बना सकते हैं। तो हमें ये पॉइंट से लेके एक ऐसा हाइपरबोला बनाना है कि हमारा जो हाइपरबोला है वो कभी भी ये जो हमने एसिम्प्टोट बनाई है इसको क्रॉस ना करे, इसके अंदर ही रहे। क्योंकि अगर आपने इसको ज़्यादा एक्सपैंड करके इसको क्रॉस कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। जैसे कि इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि इस लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो आपको क्रॉस नहीं करना है। अपने यहाँ से वर्टेक्स से शुरू करके एक ऐसा पैराबोला हाइपरबोला दोनों साइड ये बना देंगे हम लोग। और ये याद रखना कि इस लाइन से असिम्प्टोट से हमें इसको कट नहीं करना है। Now find the equation of the hyperbola with the vertex 0 plus minus 8 and asymptote plus minus 4 3x। So अगर हम यहाँ पर देखें तो ये प्लस माइनस 4/3x है। सो अब यहाँ पे वर्टेक्स कितना है हमारा, वर्टेक्स इज 0, प्लस माइनस 8। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि हमारा जो फोकल एक्सिस है वो हमारी y एक्सिस होगा, क्योंकि जो वर्टेक्स यानी a पॉइंट है वो फोकल एक्सिस के यहाँ पर कर रहा है, तो y एक्सिस हो जाएगा। और असिम्प्टोट की इक्वेशन इस केस में हमारी ये होगी प्लस माइनस a/bx। तो अब हमें a की वैल्यू पता है, दैट इज a इज 8, एंड हमें यहाँ से 4/3 पता है, दिस इज 4/3, दैट इज a/b की वैल्यू पता है। तो b की वैल्यू हम इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ से b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो b विल बी आई थिंक 6 हमारा b हो जाएगा। और फिर इसको हम अपना y एक्सिस, जब हमारी फोकल एक्सिस होती है तो हमारा इक्वेशन कुछ ये बनता है, तो इस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। सो a और b की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर। नाउ अगेन देयर इज ट्रांसलेटेड कोनिक्स फॉर द हाइपरबोला। जैसे हमने इलिप्स एंड पैराबोला के लिए ट्रांसलेटेड कोनिक्स फाइंड आउट किया है, वैसे ही इसमें होगा हाइपरबोला में।
कि हमारा जो पूरा जो हमारा सेंटर था उसको हमने ट्रांसलेट कर दिया किसी अनदर पॉइंट पे, एंड दिस पॉइंट इज से h कॉमा की, तो उस पॉइंट पे हम उसको ट्रांसलेट कर देंगे. Here also two cases will arise. The first one is center is h comma k and the focal axis parallel to x axis. So उस केस में हमारी जो इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म की हो जाएगी. सो अगर हम इसको कंपेयर करें अपने स्टैंडर्ड वाले फॉर्म से, तो ये स्टैंडर्ड में होता था यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. सो दिस इज ए स्क्वायर एंड माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. सो बस x माइनस एच स्क्वायर हो गया और इधर y माइनस के स्क्वायर. सो यही डिफरेंस है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है. एंड हाइपरबोला with center h comma k and focal axis axis parallel to y axis. So this is y minus k square upon e square, that is ये equation इसकी होगी. Now describe the graph of this equation. So इसको ग्राफ बनाना है इसका. सो अगर सपोज यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता, तो जैसे कि हमने देखा था एलिप्स के केस में कि अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली टर्म्स हैं और एक्स वाली टर्म्स हैं एंड वाई टर्म्स हैं, तो उस केस में हमारा होता था दो केसेस हो सकते हैं, या तो वो हाइपरबोला बनेगा या फिर वो एलिप्स बनेगा. हाइपरबोला कब, एलिप्स कब बनेगा, जब हमारे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों के जो कोफिशिएंट्स हैं जब वो पॉजिटिव होते हैं. पर यहाँ पर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है. उस केस में क्या होगा, हमारा ये जो ग्राफ होगा ये हाइपरबोलिक बनेगा. तो हम वही जैसे हमने उसमें किया था कि पहले एक्स एंड वाई वाली टर्म सारी लेफ्ट में ले जाएंगे और कांस्टेंट को राइट में, वही यहाँ पर किया है हमने. वी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पूरा फॉलो करके तो हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं. उस पर अगर हम उसको वेरीफाई करेंगे तो हम कुछ इस इक्वेशन तक पहुँच जाएंगे. सो इसकी हेल्प से हम यहाँ पर बता सकते हैं कि h की वैल्यू कितनी होगी 2, k की वैल्यू होगी यहाँ से 4. Here h and k and a square is this 9. This is ये a square होगा और ये b square होगा. सो a और b की वैल्यू हम निकाल सकते हैं और यहाँ से हम c की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. दैट इज फोकस के जो पॉइंट्स होंगे उसकी भी हम वैल्यूज इजीली निकाल सकते हैं. सो ये तो बेसिक हमारी इक्वेशन आ गई हाइपरबोला की. बट हाउ टू ड्रॉ अ हाइपरबोला. अगर इस फॉर्म में आ जाएगा तो सिंपल कुछ नहीं करना, जैसे हमने पहले किया था स्टैंडर्ड पोजीशन में जैसा होता था वैसे ही रूल फॉलो करना है. पहले एक बॉक्स बनाएंगे, देन उसका असिम्प्टोट फाइंड आउट करेंगे. एंड इस केस में जब हमने असिम्प्टोट फाइंड आउट किया तो वो कुछ इस फॉर्म का होगा. सो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ओरिजिन से पास नहीं कर रही हैं ये असिम्प्टोट्स. उस केस में वो ओरिजिन से पास कर रही थी, इसलिए उसकी फॉर्म जो है वो कुछ वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन बी एक्स आया था. पर इस केस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये ओरिजिन से पास नहीं कर रही है और हमारा सेंटर जो है ओरिजिन से शिफ्ट होके दूसरे h कॉमा k पॉइंट पे शिफ्ट हो गया. सो यहाँ पर हमने एक बॉक्स बना दिया जिसकी ये जो लेंथ होगी दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज असिम्प्टोट. सिमिलरली दूसरी असिम्प्टोट भी यहाँ से ड्रॉ कर देंगे और फिर एक हाइपरबोला बनाएंगे, एक ऐसा जिसमें असिम्प्टोट को ये हाइपरबोला कट नहीं करेगा कभी भी. Now comes to the next topic, reflection property of the conic section. इसमें क्या होगा, कोनिक सेक्शन की क्या क्या रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज हैं. सो इस फिगर में जब हम देखेंगे ये थ्योरम में बेसिकली जो है, सपोज let us consider this figure A. तो अगर ये मान लो
आपको पैराबोला गिवन है एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको गिवन है, आपको यहाँ पर फोकस गिवन है एंड हियर वी हैव गिवन द पॉइंट P। अगर कोई भी लाइन, सपोज ये जैसे ये लाइन आ रही है, एक लाइन जो कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री के पैरेलल है, अगर वो यहाँ से इस पॉइंट P पर आती है या एंड दिस P से होता हुआ एक यहाँ पे आपको टेंजेंट लाइन दे रखी है, तो ये जो एंगल होगी इस P के पे जैसे ही हमारी ये लाइन आएगी तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और ये जो लाइन है रिफ्लेक्ट होके कहाँ कैसे जाएगी, एक ऐसी लाइन बनाएगी जो कि फोकस से पास होगी। सो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ये फोकस से पास होगी। सो अगर मैं यहाँ से देखूँ, द टेंजेंट लाइन एट अ पॉइंट P ऑन अ पैराबोला makes equal angles with the line through P parallel to the x-axis of symmetry, parallel to the axis of symmetry and the line through P and the focus। यानी कहाँ पर हो जाएगी, एक ऐसी लाइन से जहाँ जो कि फोकस से पास होगी। और ये जो यहाँ पे एंगल अल्फा डिनोट कर रखे हैं, ये दोनों एंगल्स यहाँ पर इक्वल होंगे। सिमिलरली इलिप्स के केस में होगा कि अगर कोई लाइन आएगी, a line tangent to an ellipse at a point P makes equal angles with the lines joining P to the foci। यानी अगर इस P से होते हुए अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ फोकस से, दो लाइन, तो ये जो एंगल अल्फा और अल्फा हैं ये दोनों इक्वल होंगे। एंड सिमिलरली फॉर द केस hyperbola, a line tangent to a hyperbola at a point P makes equal angles with the lines joining P to the foci। So यहाँ पे ये जो अल्फा है, this अल्फा, ये दोनों जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। Now application of conic section। कोनिक सेक्शन यानी कोनिक सेक्शन जो है बेसिकली इसमें चार पार्ट्स होते हैं। एक होता है सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। सर्कल के बारे में ज़्यादातर चीज़ें हम लोग अपने स्कूल टाइम पे पढ़ के आ चुके हैं, इसलिए हमने सर्कल को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है। हम पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला पढ़ा है हम लोगों ने। सो अब क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती है पैराबोला की, जैसे कि हम इस फिगर में देख सकते हैं। Incoming signals are reflected by the parabolic antenna to the receiver at the focus। यहाँ पर एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे कि हमारी डिश एंटीना होता है। सो डिश एंटीना जो है वो पैराबोलिक शेप में होता है। बेसिकली वो हमारा 3D शेप में होता है, तो हम उसको पैराबोलॉइड कह सकते हैं। और यहाँ पर एक अगर हम देखें ये फिगर कुछ ऐसा होता है। अगर डिश एंटीना देखें तो ये जो पोजीशन यहाँ पर ये मैंने बनाया है ये होता है फोकस। तो जो भी हमारा सो दिस इज फोकस। अगर हम डिश एंटीना में इस फोकस को इधर शिफ्ट कर दें या ऊपर की साइड शिफ्ट कर देंगे तो हमारे जो सिग्नल्स हैं वो कैच नहीं करेंगे यहाँ से। सो वो पैराबोलिक शेप का होता है और उसके जो फोकस होता है उसी पे हमारा वो जो है ये कैमरा आई थिंक जो भी बोलते हैं ये यहाँ पे फिक्स करते हैं। तो अगर सपोज सिग्नल जो है, सिग्नल रेज ऐसे आ रही हैं तो ये इससे पास करेगी। अगर सिमिलरली यहाँ से सिग्नल आया तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फोकस पे जाएगी। तो ऐसे सिग्नल रेज आएंगे और वो इस फोकस पे रिफ्लेक्ट करेंगे। सो जब यहाँ पे सिग्नल कैच करता है उसी के हिसाब से फिर हम जैसे नीचे जो टीवी रहता है उसमें हम अपना देख सकते हैं, तो यहाँ से सिग्नल कैच करता है ये। तो यहाँ पर फोकस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर फोकस की पोजीशन थोड़ी सी भी आगे या पीछे कर दें तो हमारे जो सिग्नल है वो कैच नहीं कर पाएगा वो, और इसीलिए हमें पोजीशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे इस केस में देखें
सो ये जो फिगर है ये हमारा फोकस है इस गिवन पैराबोला का, ये जो डिश एंटीना है इसके लिए पैराबोलिक एंटीना। इसके अलावा हम पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स को इन फ्लैश लाइट और ऑटोमोबाइल हेडलाइट्स में यूज़ करते हैं सो दैट मैक्सिमम जो है रिफ्लेक्शन हो सके वहाँ से। रडार सिग्नल्स एंड साउंड वेव्स में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है एलिप्स का काफ़ी सारा यूज़ होता है। वैसे एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसी काफ़ी सारी आपको एक विस्परिंग गैलरी आपको मिल जाएगी। वहाँ पर क्या होता है कि वो एलिप्स की शेप का होता है। तो अगर कोई यहाँ पर दो लोग यहाँ पे अगर खड़े हैं और अगर वो यहाँ से अगर कुछ कहे तो वो क्या, अगर वो बहुत धीरे से भी बोले तो इस जो सेकंड पर्सन है उसको वो आवाज़ बहुत ही क्लियरली सुनाई दे जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से उसके साउंड वेव्स यहाँ से जाके रिफ्लेक्ट होके वापस इस इंसान तक आएगी। बट द कंडीशन इज कि जो दो पर्सन है वो फोकस पॉइंट पे खड़े होंगे तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। सो अगर वो बहुत धीरे भी बात करेंगे तो वो सबको सुनाई दे जाएगी वहाँ पर। और जो हाइपरबोला है वो बेसिकली नेविगेशन सिस्टम में काम आता है। और जो हमारे आज के टाइम का ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है दैट इज जीपीएस, वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। सो यहाँ से हम इस फिगर से देख सकते हैं हाइपरबोला का एप्लीकेशन। लास्ट सेक्शन दैट इज रोटेशन ऑफ एक्सिस एंड सेकेंड डिग्री इक्वेशन। सो अभी तक हमने देखा था कि ट्रांसलेटेड सेक्शंस देखा था, कोनिक सेक्शन। उसमें क्या हुआ था कि हमारा जो पूरा पैराबोला है उसका हमने ओरिजिन से उसका सेंटर शिफ्ट करके किसी दूसरे पॉइंट पर उसको शिफ्ट कर दिया था। बट ये याद रखा था हमने कि हम केवल उसको शिफ्ट कर रहे हैं, उसकी पोजीशन को या उसको ना तो टिल्ट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, हम पैरेलली उसको शिफ्ट कर रहे थे। बट रोटेशन ऑफ एक्सिस में क्या करेंगे हम लोग, हम अपने जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है उसी को रोटेट कर देंगे और उससे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। अभी तक जो हमने केसेस देखा था उसमें था कि जो हमारा अगर इस फॉर्म में कुछ आपकी इक्वेशन होती थी, आपको गिवन रहता था, तो उससे हम इजीली बता देते थे कि ये हाइपरबोला होगा या पैराबोलिक शेप होगी या इलिप्स की शेप होगी, हम इजीली बता सकते थे। बट व्हाट अबाउट इफ इट आल्सो कंसिडर अ टर्म ऑफ एक्स वाई। अगर एक्स वाई की टर्म भी आ रही है यानी क्रॉस प्रोडक्ट टर्म भी आ रही है, तो उस केस में हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये कौन सा कोनिक सेक्शन होगा। तो उसी को हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे अगर हम इस फिगर में देखें तो हमने क्या किया, अपना जो इलिप्स था उसकी एक्सिस को रोटेट कर दिया है, यानी कि किसी पर्टिकुलर किसी एंगल से हमने उस एक्सिस को ही रोटेट कर दिया है, वेयर द सेंटर इज सेम, सेंटर ओरिजिन ही है पर हमने एक्सिस को रोटेट कर दिया, जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस था उसी को रोटेट कर दिया। ये हम केवल फॉर्मूला देख लेते हैं। जो रोटेशन इक्वेशन होती है वो कुछ इस टाइप की होती है। इस फिगर से हमें क्लियरली समझ आ सकता है। सो जैसे कि यहाँ पर हमने किया, यहाँ पॉइंट P आपको गिवन है और हमने अपने एक्सिस को एंगल थीटा से रोटेट कर दिया। तो जो हमारी इक्वेशन होगी या जो नई हमारी एक्सिस होगी, सपोज हमने उसको नाम दिया x डैश एक्सिस एंड हियर इट इज
वाई डैश एक्सेस। सो जब रोटेशन के बाद जो एक्सेस है हमने उनको अलग अलग नामों से डोनेट किया, एक्स डैश एंड वाई डैश एक्सेस। सो हम अगर एक्स वाई प्लेन है और हमें बोला एक्स वाई प्लेन को हमने रोटेट कर दिया है, तो हम उसमें कैसे उसको एक्स डैश वाई डैश टर्म में कैसे लिख सकते हैं, हम वो बेसिकली अभी पढ़ेंगे। सो अगर आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, सो रिलेशन ये है x डैश कॉस थीटा माइनस y डैश साइन थीटा, एंड फॉर y इक्वल टू x डैश साइन थीटा प्लस y डैश cos theta. So let us apply in the for an example. So suppose that axes of an xy coordinate system are rotated through an angle theta equal to 45 degree to obtain a new coordinate system of x dash y dash. Find the equation of the curve, this curve, in x dash y dash coordinate. So हमें ये जो given equation है इसको x dash y dash coordinate में convert करना है basically. पर आपको थीटा की वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है। अगर हम यहाँ से देखें यहाँ पर देखें अगर हम, तो हमें वैल्यूज कौन कौन सी चाहिए, कॉस थीटा, साइन थीटा। अगर हमें इसकी यहाँ से वैल्यू पता चल गई तो हम एक्स एंड वाई को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हम वही चीज करेंगे यहाँ पर। थीटा इज 45 डिग्री, वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। सो साइन थीटा विल बी 1/√2, cos theta will be again 1/√2. So अगर मैं उस given equation में इसकी वैल्यू पुट करूँ, that will be x dash sin theta minus y dash cos theta. So ये जो वैल्यूज पुट किया हमने, तो ये हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा है, एंड सिमिलरली y के लिए हम पुट कर सकते हैं। अब कुछ नहीं करना, बस हमें जो गिवन इक्वेशन थी, जो कि आपको गिवन थी इक्वेशन, here it is this one. So ये जो इक्वेशन थी यहाँ पे, जहाँ x स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है, तो x की जगह ये वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देनी है और y की जगह ये वाली वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। सो जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम कुछ यहाँ तक पहुँच सकते हैं, which is in clearly we can see that this is an equation of ellipse. यहाँ से हमने ये फाइंड आउट किया कि ये जो इक्वेशन है ये एलिप्स बन जाएगी अगर या एलिप्स की इक्वेशन है विद द रोटेशन एक्सिस, जहाँ पे जो रोटेशन हुआ है वो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे रोटेट हुआ है। सो यहाँ पर अगर देखें हम लोग, तो यहाँ एक्स वाई वाली टर्म भी यूज हो रही थी, लेकिन हमने एट द एंड जो है एक्स वाई को भी जब हमने x को x डैश y डैश में कन्वर्ट किया, तो एक्स वाई वाली टर्म जो है ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव हो गई और वो एक इक्वेशन ऑफ एलिप्स बन गया हमारा। सो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। और अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें हम लोग, तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा कि एक एलिप्स बनेगा
जिसमें एक्सिस x डैश एंड हियर इट इज y डैश, और जो थीटा आपका है वो कितना है 45 डिग्री का। यहाँ से हम एक इलिप्स बना लेंगे। सो ये इक्वेशन, इस इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। ओके, अभी हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी उसमें था कि x इक्वल टू, मतलब इक्वेशन गिवन थी जो कि x एंड y की टर्म, x डैश y डैश की टर्म में थी। अब उसका रिवर्स केस हो रहा है कि हाउ टू सॉल्व फॉर x एंड y डैश, x डैश एंड y डैश इन टर्म्स ऑफ x एंड y। सो उसके लिए ये फॉर्मूला है, ये आपको लर्न होना चाहिए। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। So using rotation equation, this above equation, okay, find the new coordinate of the point 2, 4 if the coordinate axes are rotated through an angle of theta equal to 30 degree. So new coordinate हमको find out करना है। So ये जो वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर, ये x एंड y की वैल्यू गिवन है और हमें यहाँ बता रखा है थीटा की वैल्यू गिवन है। सो अगर हम देखें यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, जो ये है cos थीटा निकाल लेंगे, sin थीटा निकाल लेंगे और एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये नए कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। हमें जस्ट वैल्यूज पुट किया हम लोगों ने। नाउ एलिमिनेटिंग द क्रॉस प्रोडक्ट टर्म्स। जो क्रॉस प्रोडक्ट टर्म्स है हम उसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। सो ये एक थ्योरम है, इसका केवल यूज़ हम करेंगे, इसका कोई प्रूफ वगैरह नहीं करेंगे। सो इफ़ द इक्वेशन is of this form: ax square plus bxy plus cy square plus dx plus ey plus f equal to 0 is such that b is not equal to 0। यहाँ पे जो क्रॉस प्रोडक्ट वाली टर्म है वो, उसका जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं है। दैट मीन्स इस इक्वेशन में वो एक्स वाई टर्म है। एंड इफ एन x dash y dash coordinate system is obtained by rotating the xy axis through an angle theta। अब आपको नहीं पता कि वो कौन सा मतलब एक एंगल थीटा से हमने रोटेट किया एक्स वाई एक्सिस को, और एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने लिया है जो कि एक्स डैश वाई डैश है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और थीटा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, that is cot theta, cot 2 theta equal to a minus c upon b, then in x dash y dash coordinate this equation, ये जो given equation थी, equation 7 will have the form this। तो ये जो नई फॉर्म आई है इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा जो x डैश और y डैश, x डैश y डैश वाला जो कोऑर्डिनेट है, यानी जो हमारा यहाँ पे जो हम क्रॉस प्रोडक्ट टर्म की बात कर रहे हैं वो हमारा रिमूव हो गया है यहाँ से। और जैसे ही यहाँ पे एक बार ये रिमूव होगा तो इसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेदर इट इज ग्राफ ऑफ इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। Okay, here it is note: it is always possible to satisfy this equation cot 2 theta equal to a minus c upon b with an angle theta in the interval 0 to pi by 2। So 0 से pi by 2 के बीच का एक हमें थीटा ऑलवेज फाइंड आउट कर सकते हैं, और हम इस केस में वही थीटा कंसिडर करेंगे जो कि 0 से pi by 2 के बीच में होगा।
So identify and sketch the curve xy equal to 1. सबसे पहले हमें इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये कर्व कैसा होगा, either parabola, ellipse, hyperbola or a circle, and then sketch the curve. तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप होगा इसमें, अब क्योंकि हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे एक्स वाई प्रोडक्ट टर्म जो है वो उसका जो कोफिशिएंट है वो नॉन ज़ीरो है, दैट मीन्स एक्स वाई वाली जो टर्म है वो प्रेजेंट है यहाँ पर। तो उस केस में जैसा कि हमने अब ये थ्योरम किया था कि अगर इक्वेशन इस फॉर्म की है तो हम नया एक्स डैश वाई डैश कोऑर्डिनेट बना सकते हैं जिसका थीटा ये होगा और हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। सो वही चीज़ करेंगे हम, सबसे पहले थीटा फाइंड आउट करेंगे। नाउ अगर हम कंपेयर करें इक्वेशन 7 से इसको, सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज a, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। नाउ एक्स वाई का कोफिशिएंट इज b, सो b की वैल्यू है b का एक्स वाई का कोफिशिएंट 1 है तो b की वैल्यू 1 हो जाएगी। एंड वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है c होगा और उसकी वैल्यू यहाँ पे 0 है। सो ए बी सी की वैल्यू पता चल गई। यहाँ से हम जो हमने ऊपर फॉर्मूला देखा था cot 2 थीटा इक्वल टू a माइनस सी अपॉन बी, इसकी हेल्प से यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज cot 2 थीटा इक्वल टू 0। अब 2 थीटा 0 कब होगा, एट पाई बाई 2, एंड हेंस थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो एक बार वो निकालने के बाद हम इसमें x डैश एंड y डैश वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि अब मुझे थीटा पता चल गया, अब मैं x और y को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। सो अगर हम देखें जो हमने ऊपर फॉर्मूला x एंड y वाला देखा था, बस उसी को हम लोग यूज करेंगे अभी। सो हियर इट इज। सो ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था x इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा एंड y इक्वल टू एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो इस क्वेश्चन में आई थी वो हमारी 45 निकल के आई है, तो 45 वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे और फिर x डैश y डैश की टर्म में हम अपना फाइंड आउट कर लेंगे। सो यहाँ से हम x को रिप्लेस कर सकते हैं इससे एंड y को इससे कर सकते हैं, जैसा अभी हमने पढ़ा था x डैश कॉस थीटा माइनस y डैश साइन थीटा, वैल्यूज पुट करके हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब x और y की वैल्यूज आ गई है, हम अपने गिवन इक्वेशन में, ये जो गिवन इक्वेशन थी इसमें इसको पुट करेंगे। सो x और y की वैल्यू पुट करेंगे। सो x डैश अपॉन √2 माइनस y डैश अपॉन √2 इंटू x डैश √2 प्लस y डैश अपॉन √2 इक्वल टू 1। और फिर जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एट द एंड वी गेट an equation of this form, x dash square upon 2 minus y dash square upon 2 equal to 1। सो क्लियरली अगर हम यहाँ से देखें तो ये एक हाइपरबोला की इक्वेशन है जिसपे कि हम a की वैल्यू बता सकते हैं, दैट विल बी √2 एंड b इज ऑल्सो √2 एंड ऐसे ही c के रिलेशंस, जो a b c का रिलेशन था उसकी हेल्प से हम c की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो हमारा नया जो ग्राफ इसका बनेगा वो कैसा बनेगा, अब हमारा हुआ क्या, ये जो एक्सिस है ये जो एक्सिस है बेसिकली ये 45 डिग्री से हमारी रोटेट हो गई है। सो एक्स एक्सिस ये हो जाएगी एंड सिमिलरली यहाँ से वाई एक्सिस कुछ ऐसी बन जाएगी, वाई डैश एक्सिस। सो दिस इज वाई डैश एंड दिस इज एक्स डैश। सो एक्स डैश और वाई डैश है हमारा ये। अब हमें
हम ये जो x और y एक्सिस है, अब इसको एक बार इग्नोर कर सकते हैं। अब हमें केवल ये जो ग्रीन से मैंने x डैश और y डैश एक्सिस बनाई है, बस उसको देखते हुए हमें यहाँ पे एक हाइपरबोला ड्रॉ करना है। और हाइपरबोला ड्रॉ करने के लिए जैसे कि हम कंडीशन ऑलरेडी जानते हैं कि यहाँ से ये जो डिस्टेंस लेंगे हम लोग, ये √2 का डिस्टेंस लेंगे यहाँ तक। सिमिलरली यहाँ तक √2 का लेंगे, बिकॉज यहाँ पे a और b दोनों √2 हैं। सो यहाँ पे भी √2 और यहाँ पे भी √2, तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा बेसिकली। और उसके बाद हम कैसे निकालते थे, उसके बाद एक हमको डायगोनल इनका वो चाहिए होता था, जो कि असिम्प्टोट्स होती थी। सो इसकी जो असिम्प्टोट है वो, आई थिंक ये फिगर थोड़ा सा हो गया। सो अगर मैं इसमें ही बनाऊं तो इसकी असिम्प्टोट, ये जो टोटल x एक्सिस से ऐसे जाएगी। सो एक ऐसा हमको यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना है हाइपरबोला का, जो कि असिम्प्टोट को कट ना करे कभी भी। इस केस में ये जो एक्स वाई एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और ये जो वाई एक्सिस है, ये हमारी असिम्प्टोट का रोल प्ले करेगी। और एक ऐसा एक ऐसा हाइपरबोला बनाना है जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कभी भी कट ना करे। सो आई थिंक यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। द केस इज, कई बार क्या होता है कि हमारे जब हम वैल्यू निकालते हैं cot 2 थीटा इक्वल टू a माइनस सी अपॉन बी से, तो वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, या फिर हमारे पास जो थीटा है वो 0 से π/2 के बीच में हम फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं इजीली, और वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। तो उस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नया फॉर्मूला है, हम इस फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा के लिए। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एंड स्केच द कर्व। सो यहाँ पे अगेन एक्स वाई टर्म यूज़ हो रही है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब जब हमने ये देखा, सो cot 2 थीटा इज इक्वल टू दिस। अब हमें थीटा की वैल्यू हम इजीली यहाँ से नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं, तो अब पर जो हमें x डैश और y डैश में कन्वर्ट करने के लिए क्या वैल्यूज चाहिए होती हैं, cos थीटा वैल्यू चाहिए होती है एंड साइन थीटा वैल्यूज चाहिए होती है। तो हम थीटा न निकाल के डायरेक्ट वैल्यूज निकालेंगे, cos थीटा और साइन थीटा की वैल्यूज निकालेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमको वही दो वैल्यूज चाहिए। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला जो कि हमने ऊपर देखा था, साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 एंड cos थीटा इक्वल टू √1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, ये वैल्यूज पुट करेंगे। सो हम यहाँ इस पर पहुँच सकते हैं इस नतीजे पे। और यहाँ cot 2 थीटा से हम cos 2 थीटा हमने निकाला, एज वी ऑलरेडी नो कि cot थीटा इज इक्वल टू सो यहाँ से cos 2 थीटा की वैल्यू निकाल ली, और फिर हम यहाँ से निकाल सकते हैं, एज वी नो दैट cos थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और फिर उसकी हेल्प से हम लोगों ने इसको निकाला, cos 2 थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो उसकी हेल्प से हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया। और फिर यहाँ पे x एंड y की वैल्यूज जो अभी फॉर्मूला जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था वहाँ से निकाला, और फिर गिवन इक्वेशन में जब ये वैल्यू पुट करेंगे x, और इस इक्वेशन में हम x और y की वैल्यूज पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम कुछ इस इक्वेशन पे पहुँचते हैं। सो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, जिसमें कि हमारा जो ये स्टैंडर्ड पोजीशन में नहीं है, बल्कि इसका जो सेंटर है वो शिफ्ट कर दिया गया है 1, 0 पे,
एज वी यहाँ से देख सकते हैं h की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी और यहाँ पे k की वैल्यू 0 होगी। और फिर हमें पता ही है कि हमें एंगल इसका ग्राफ कैसा ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो भी सिलेबस था यूनिट 1 का यहाँ से कंप्लीट हो गया। ये मैंने रेफरेंस लिया है कैलकुलस अर्ली ट्रांसेंडेंटल्स 9th एडिशन H. Anton I. Bevis and S. Davis की बुक से and SOL study material. Thank you very much for watching this video. So पेपर के लिए यूनिट 1 में ये सफिशिएंट टॉपिक है। अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं तो ये सफिशिएंट है। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। और लास्ट ईयर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ये ऑलमोस्ट यहीं से पूछे गए हैं और मैंने हर टाइप का एग्जाम्पल आपको करा दिया है इसमें।